Hello, my dear students. Welcome to my class. Today, we are going to start with the second part of the chapter, money and banking. We are going through. Already, those who have seen my first video, they have understood what we are talking about. This is an explanation. Okay, explanation of the line by line of this lesson. So, we will start from the second part. That is, what is money? So, what is money? According to one of the economists, his name is Geoffrey Crowther. According to one of the economists, Geoffrey Crowther, anything that is generally acceptable as a medium of exchange is money. That means anything, कोई भी चीज़ जिसको एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज़ किया जाता है, उसी को हम मनी बोलते हैं. मार्केट में मीडियम एक्सचेंज का रोल कौन प्ले करता है? मनी प्ले करता है. सो दैट इज़ वाई जियोफ्रे क्राउथर ही शेड दैट एनीथिंग that is generally acceptable as a medium of exchange is money. Okay, that means generally acceptable means acceptable by one and all, everybody. That means everybody should use it, everybody should accept it, that yes, through money we can buy, sell or exchange commodity, isn't it? So that is why it was accepted by each and everyone. It is backed up by the law of the land. In other words, general acceptability has a legal basis. Law of the land मतलब इसको आइन के through law it has been protected. कानून के थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया गया है. ठीक है ना? सरकार के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि मनी को ही यूज़ करना है हमको, क्या, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और कोई भी इनकार नहीं कर सकता है इसको यूज़ करने से. सो दैट इज़ वाई इट इज़ बैक्ड अप बाय द लॉ ऑफ द लैंड. सो इट इज़ जनरल एक्सेप्टेबल, हैज़ अ लीगल बेसिस. होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मनी. नाउ characteristics of money. What are the characteristics? Money has number of characteristics. This some are which are going to which is given in this here in this book. So we will explain that. The first one is money must have general acceptability. It must be acceptable as a medium of exchange. This is the most important characteristics of money. Yes, that is the first characteristic, that it should be accepted by everybody as a medium of exchange, and they have to use it because no other things can be used as a medium of exchange at the present moment. I am not talking about earlier period. Earlier period has we had used many things which I have already explained in my earlier class, that animal standard are there, metallic coins has been used as a money, but in the present moment, in the present era, we use money and it has been recognized by the government of our country. So it should be acceptable as a medium of exchange, and that will be the first important characteristics of money. Hope you have understood. Second, money must have cognizability. There should be absolute no difficult in identifying money. If money is not easily recognizable, transaction will naturally be problematic. Yes, cognizability, that means it should be easy to identify money. Money should have its own character, money should have its own identity. Okay, when you use a piece of paper, that can be a money has its own, what you can say, image, it has its own, what you can say, identity. So there should be a absolutely no difficulty in identifying money. You should have that capability, and the recognition should be easy to everybody, so that सभी को पहचान में आए कि ये पैसा है. अगर साधारण कागज़ में और पैसे में अगर कोई फ़र्क नहीं रहेगा तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो रिकॉग्निजेबल होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए. और जैसे कि 10 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 100 का नोट है, 1000 का तो नहीं है आजकल, 500 का नोट है, तो सभी के नोट में देखो 500 का हर नोट सेम होता है, 10 का हर नोट सेम होता है, 100 का हर नोट सेम होता है. इसका अर्थ क्या है? क्योंकि हमें ये बता रहा है कि ये 100 है, इसको आइडेंटिफाई करना ईजी है. अगर एक 100 का नोट अलग हुआ, दूसरा अलग हुआ, हाउ विल यू आइडेंटिफाई? सो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई. सो it should be easy to identify, that is cognizability. Okay, hope you have understood. Money must have durability. Yes, durability का अर्थ है long lasting, isn't it? देखो हमने पहले पढ़ा था पिछले क्लास में, फिश, एग, मिल्क एक्सेट्रा, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं,
बहुत दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते, इसको रखा नहीं जा सकता है कि बाद में हम यूज़ करेंगे बोल के, नहीं, ये पेरिसेबल कमोडिटी है और ये ख़राब हो जाता है कुछ समय के बाद। सो मनी ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मनी हैज़ ड्यूरेबल वैल्यू। मनी कैन, दैट मीन्स इफ मनी इज़ पेरिसेबल, मनी कैन नॉट बी स्टोर्ड। अगर मनी भी ख़राब हो जाता तो इसको स्टोर नहीं किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है मनी के केस में। वी कैन स्टोर, वी कैन सेव as much as long as you can. So saving is possible with the help of money. So money must have what? Money have durability. That is the characteristics of money. Next, money must have homogeneity. What is homogeneity? In other words, money of equivalent value must be identical in all respect. If one 10 rupee note is like a ribbon in size and another is big as the size of a register book, there will be a problem of selection and rejection. ये point 2 के साथ similar है, थोड़ा सा इसको अलग से दिया गया है। homogeneity, homogeneous, identical मतलब एक दूसरे का equivalent होना चाहिए, एक दूसरे को से मतलब सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। इसमें एग्जांपल एक दिया गया है, देखो, इफ़ 1 10 रुपी नोट इज़ लाइक ए रिबन इन साइज, अगर एक 10 रुपये का साइज रिबन की तरह हो, और अनदर इज़ एज बिग एज ए रजिस्टर बुक, और दूसरा एक रजिस्टर बुक जितना बड़ा हो, देयर विल बी ए प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। हाँ, सिलेक्शन और रिजेक्शन में प्रॉब्लम है। शायद रजिस्टर वाला बुक जो साइज़ है उसको यूज़ लोग नहीं करेंगे, बिकॉज लोग क्या यूज़ करेंगे, स्मॉलर वन। सो देयरफॉर ऑल 10 रुपी नोट मस्ट बी परफेक्टली आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। इसलिए हर 10 रुपये का नोट सेम दिखता है, आइडेंटिकल है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। सो सिमिलरली फॉर मनी ऑफ अदर डिनोमिनेशन, मतलब हर डिनोमिनेशन के लिए अगर 500 है, फिर अगर 200 का है, 50 का है, तो सबका सब डिनोमिनेशन में आइडेंटिकल होना जरूरी है, एक होना होमोजेनियस, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेम शेप, सेम साइज होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। सो दैट इज होमोजेनियस, इट इज सिमिलर टू पॉइंट 2, ओके, इट इज नॉट वेरी डिफरेंट, ओके। नेक्स्ट, मनी मस्ट हैव लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी ऑफ मनी मीन्स डायरेक्ट एंड इमीडिएट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी इनटू गुड्स एंड सर्विस दैट द होल्डर ऑफ मनी वांट्स। हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास ये पावर तो होना चाहिए ना, तुम इसको किसी के साथ कन्वर्ट कर पाओ, कोई भी गुड्स खरीद पाओ, कोई भी सर्विसेज ले पाओ। अब जब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो ये सर्विसेज है, अगर तुम कुछ खरीद रहे हो तो वो गुड्स है, ठीक है ना। तो मनी के थ्रू कुछ भी चीज़ को कन्वर्ट करना इजी होता है, और ये होना चाहिए, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ मनी इनटू गुड्स एंड सर्विस। ओके, जो एक को चाहिए, जो इंडिविजुअल वन मेनी थिंग्स, तो उसको इजीली किसी और के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है। लिक्विडिटी मतलब, लिक्विड मतलब क्या? लिक्विड का अर्थ क्या है? पिघल जाना, इजंट इट, पानी की तरह किसी भी शेप में हो जाना, ठीक है ना। तो इनफैक्ट कंपेयर टू अदर स्टेट द डिग्री ऑफ लिक्विडिटी इज द मैक्सिमम इन केस ऑफ मनी। अगर हम आगे भी पढ़ें, पहले हमने कल देखा कि आप कोई भी टाइम पे, इवोल्यूशन ऑफ मनी में कोई भी टाइम पे आप देख लो, मनी के तरह कोई किसी के पास भी लिक्विडिटी का पावर नहीं है, कोई भी डिविजिबल नहीं है। मनी इज डिविजिबल एंड मनी इज लिक्विडिटी, दैट मनी हैज लिक्विडिटी कैरेक्टर्स, इट कैन मोल्ड इन एवरी शेप एंड साइज, इट कैन मोल्ड एवरीवेयर, हर जगह में घुस सकता है, हर फॉर्म में इसको ढाला जा सकता है, हर किसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी किसी इवोल्यूशन में ये चीज़ नहीं था, ठीक है ना। अब देखो, लेन, गोल्ड, सिल्वर, अदर एसेट ऑल्सो हैव लिक्विडिटी बट देयर लिक्विडिटी इज लेस देन द मनी। हाँ, ये तो सही है, लेन का भी लिक्विडिटी है, गोल्ड का भी लिक्विडिटी है, सिल्वर का भी लिक्विडिटी है, लेकिन मनी के जितना नहीं, पैसा का जितना नहीं, क्योंकि मनी डायरेक्टली हम लिक्विडिटी के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन लैंड, गोल्ड, सिल्वर इसको इमीडिएटली यूज़ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली और इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं होता है, टाइम चाहिए इसको। फॉर एन एग्जाम्पल, अब देखो, ए प्लॉट ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंस्टेंटली कन्वर्टेड इनटू गुड एंड सर्विसेज, द प्लॉट ऑफ लैंड हैज़ टू बी सोल्ड आउट एंड द मनी अर्न विल बी यूज टू बाय एंड गुड्स एंड सर्विसेज। सिमिलर, देखो, तुमको एक गाड़ी खरीदना है, तुम्हारे पास मिट्टी है, बहुत सारा मिट्टी है, तुमको पहला वो मिट्टी, अगर तुम डीलर में जाके ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास मिट्टी है, ये ले लीजिए, ये 1 कट्ठा मिट्टी है, ये ले लीजिए और मुझे ये गाड़ी दे, ऐसा नहीं होता है।
है कि नहीं। तो ये इसका कन्वर्टेबल मतलब टाइम है, मतलब टाइम लगता है, होता तो है लेकिन मनी की जितना नहीं इजीली कन्वर्ट नहीं होता। पहले आपको उसको बिक्री करना पड़ेगा, कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद उससे आपको जो पैसा अर्न होगा उससे आप बाय कर सकते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज। सेम विद द केस ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड अदर स्टेट्स। ये नहीं बोल रहा हूँ कि लैंड गोल्ड और सिल्वर का लिक्विडिटी नहीं है लेकिन कम है मनी से। अगर क्वेश्चन आता है कन्फ्यूजन करके कि लैंड गोल्ड और सिल्वर लिक्विडिटी में पड़ता है कि नहीं पड़ता है, लिक्विडिटी तो इनके पास है बट इट इज़ लेजर देन दैट ऑफ मनी। और जस्टिफाई किस तरह करना है, ये एग्जाम्पल के थ्रू, और कोई भी अपना एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड। पॉइंट नंबर 6, मनी मस्ट हैव ट्रांसफरेबिलिटी। मनी को किसी के साथ भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आजकल लार्ज मार्केट है, कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, मार्केट एक्सटेंड हो चुका है, वर्ल्ड मार्केट, अभी सब वर्ल्ड मार्केट की ओर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। हर चीज़ ऑनलाइन हो जाता है, तो ट्रांसफरेबिलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मनी के पास होना चाहिए, और ये है। ओके अगर मनी के पास ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होता तो मार्केट एक्सपांड नहीं किया जा सकता था, मार्केट एक्सपांड नहीं होता, ठीक है ना। ओके अगर मनी के पास ट्रांसफरेबिलिटी ऑप्शन नहीं होता तो इट विल बी डिफिकल्ट टू सेटल ट्रांजेक्शन। अगर नहीं होता तो ट्रांजेक्शन होता ही नहीं, ठीक है ना। इन टूडेज मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इज नॉट इवन नेसेसरी टू फिजिकली ट्रांसफर मनी टू सेटल ट्रांजेक्शन। पेमेंट में बी मेड थ्रू एडजस्टमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आर बीइंग इंक्रीजली यूज्ड टू सेटल ट्रांजेक्शन। हाँ आजकल बैंक जाना या बैंक से कुछ मतलब बैंक के थ्रू सेटल करना ये ज़रूरी नहीं है, ट्रांसफ़र करना आप खुद से कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है ना। कोर बैंकिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन पेमेंट मेथड कई सारे हैं। तो मनी हैव ट्रांसफरेबल वैल्यू, इसको किसी के साथ भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है वेरी इजीली। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। मनी मस्ट हैव डिविजिबिलिटी। यस मनी के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो होना चाहिए, वो है क्या, डिविजिबिलिटी। हमने एक एनिमल स्टैंडर्ड में एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि उस समय में, उस इवोल्यूशन में जब एनिमल्स को यूज़ किया जाता था एज ए मनी, उसमें डिविजिबिलिटी नहीं था। तो मनी में डिविजिबिलिटी है, मतलब हाई वैल्यू मनी को आप कन्वर्ट कर सकते हो लो वैल्यू मनी में, मतलब तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आप उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। मनी इज़ डिविजिबल, दैट मीन्स ओके। इसका अर्थ क्या है, मनी कैन सेटल ए ट्रांजेक्शन ऑफ 50 पाइस और ए ट्रांजेक्शन ऑफ 50 करोड़। That means high value money can be easily converted to low value money. There is money to settle transaction of all value, high or low. Lack of divisibility नहीं है। Lack of divisibility कहाँ था, commodity money में। जितना भी commodity को मतलब commodity को जब यूज़ किया जाता था, goods को यूज़ किया जाता था, तब वो उसमें divisibility problem था। Money has settled this problem, money has solved this problem, okay. So we can settle a transaction of 50 pice to a transaction of 50 crore. Hope you have understood this point. Point number 8, money must have stability of value. That means if the value of money continues to fall all the time, money will fail to act as a store of value. In Germany, when the value of money fell sharply or the price level rose quite rapidly, people eventually refused to accept German money and new currency had to be introduced. देखो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल पॉइंट है। देखो डिपेंड करता है आपका वैल्यू, मनी का वैल्यू घटता है ना बढ़ता है। देखो जब देश में इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, कोई भी देश में कभी भी हो सकता है इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब इंडिया में भी थोड़ा सा इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब ऐसा संभावना हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकली अभी वार के वजह से, ईरान के साथ अमेरिका का जो वार, या ईरान जिस तरह वार में लगा हुआ है, अमेरिका सेटल करने का कोशिश तो कर रहा है लेकिन सेटल तो हो नहीं रहा है। तो जिस तरह का वार चल रहा है देश में, तो उसी के वजह से कई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम वर्ल्ड में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, हर कंट्री पे हो रहा है। उस समय क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी कभी कभी घटता है। अब तुम रख रहे हो, देखो बैंक में आपने रखा 50,000, पहले अगर 10 साल पहले 50,000 में आपको कितना चीज़ें मिलता था, आज 50,000 में कितना चीज़ मिल रहा है। तो आपको इसका अर्थ क्या, वैल्यू मनी का वैल्यू घट रहा है, गिर रहा है, ठीक है ना। ये होना नहीं चाहिए। मतलब देखो वैल्यू ऑफ मनी तो घटेगा लेकिन एक लेवल के थ्रू, मतलब स्टेबिलिटी के थ्रू, मतलब सडन फॉल अगर हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। एक बार हुआ था जर्मनी में, जहाँ देखो इन जर्मनी व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी फेल शार्पली, बहुत तुरंत ही बहुत ज़्यादा गिर गया था क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ गया था। तो पीपल इवेंचुअली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट जर्मन मनी
पीपल ने जर्मन मनी को यूज़ करने से मना कर दिया था, न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू होना चाहिए। आज आपके अकाउंट पे अगर 50,000 है तो वैल्यू 50,000 रहना चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये अलग बात है कि आप 50,000 में पहले कितना खरीद पा रहे हो और आज कितना खरीद पा रहे हो, उसमें डिफरेंस तो आएगा, मतलब वैल्यू ऑफ मनी तो थोड़ा सा घटेगा, लेकिन इतना भी नहीं घटेगा, शार्पली तो नहीं गिरेगा, ठीक है ना। गिरना नहीं चाहिए मतलब, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो देश में इकोनॉमिक डिप्रेशन या कुछ नेचुरल कैलामिटी ना आ जाए। सो होप यू हैव अंडरस्टूड मनी मस्ट हैव स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ मनी, विल गो वन बाय वन। हाँ, मैं फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ाने से पहले बता दूं कि हम लोग 3 पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। आज फंक्शंस ऑफ मनी को पूरा एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, उसके बाद थर्ड पार्ट विद इन 2-3 डेज आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ते हैं, क्या क्या काम है। मनी परफॉर्म 4 डिफरेंट फंक्शन, ओके, ठीक है, 4 फंक्शन उन लोग करते हैं, 4 काम शायद बोल सकते हैं हम, वो करते हैं। तो व्हाट आर दे? फर्स्ट वन, मनी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको कितना बार बोलूँ? एक ही बार है, एक ही बात है, बार बार मैं बोल चुका हूँ कि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज परफॉर्म करता है, ठीक है ना। बटर सिस्टम में कमोडिटी को यूज़ किया जाता था डायरेक्टली एक्सचेंज करने में अगेंस्ट कमोडिटी, ठीक है ना। इन मनी इकोनॉमी में कमोडिटी आर इनडायरेक्टली एक्सचेंज, डायरेक्टली नहीं, कमोडिटी इनडायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता है। सिंपली इसको समझते हैं, क्या बात बोला है। ए सिंगल ट्रांजैक्शन इन द बार्टर सिस्टम इज स्प्लिटेड इनटू 2 ट्रांजैक्शन इन मनी इकोनॉमी। देखो, जब मनी के थ्रू आप कोई भी एक्सचेंज करते हो, कोई भी परचेस करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, उसको उसमें 2 ट्रांजैक्शन होता है, 2 ट्रांजैक्शन। ये कैसे? तो हम लोग सोच रहे हो सर 1 ट्रांजैक्शन ही होता है, 2 ट्रांजैक्शन कैसे? देखो, अगर इसमें एग्जाम्पल दिया, द पर्सन प्रोड्यूसिंग राइस will sell rice, first transaction, and the money does earn will be used to buy clothes, second transaction। हर कोई वही कर रहा है। आज मैं पैसा कमा रहा हूँ या आप कमा रहे हो पैसा, उससे आप क्या करोगे? कुछ खरीदोगे, ठीक है ना। जिससे खरीदोगे वो भी किसी और के साथ कुछ खरीदेगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल इसमें भी बहुत अच्छी तरह दिया है। देखो, अगर एक प्रोड्यूसर है, वो राइस प्रोड्यूस कर रहा है, वो पहला राइस सेल करेगा, वो पहला फर्स्ट ट्रांजेक्शन इन विद द हेल्प ऑफ मनी, बायर विल पे मनी टू हिम, ठीक है ना। और वो सेलर क्या करेगा? मनी को यूज़ करेगा टू बाय हिज नीड्स। क्लॉथ बोल के दिया है, कोई भी नीड्स हो सकता है, वो हो गया सेकेंड ट्रांजेक्शन। सो मनी डज बिकम ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को किसी के रूप में भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, किसी के साथ, ठीक है ना। एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल बाय एवरीबडी, ठीक है सर। दैट विल द फंक्शन। इस तरह मनी काम करता है, ये पहला फंक्शन है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। Second point, money act as a standard of measurement of value of goods and services. Wait a minute. Yeah, money act as a standard of measurement of value of goods and services. All economic goods have price. The value in exchange expressed in terms of money is price. Money is the common unit of measurement. The value of all economic goods and services are expressed in price only, isn't it? देखो, कोई भी चीज़ का कितना वैल्यू है। आपने एक पर्स खरीदा, उसका वैल्यू, आपने एक पेन खरीदा, उसका वैल्यू, आपने एक डायरी खरीदा, एक बुक खरीदा, उसका वैल्यू है। वो वैल्यू को किस तरह मेजर किया जाए? थ्रू द हेल्प ऑफ मनी। मनी एक कॉमन यूनिट है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो, एक कॉपी का दाम होगा 50 रुपये, एक पेन का दाम होगा 10 रुपये, क्योंकि उसका वैल्यू ही 10 का है, और उस कॉपी का दाम, उस नोटबुक का दाम 50 रुपये, इसलिए उसका वैल्यू 50 रखा गया है, ठीक है ना। तो मनी इज़ द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना, इसको कॉमन यूनिट बोला जा सकता है। द वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस आर एक्सप्रेस इन प्राइस ओनली। और हर वैल्यू को, इकोनॉमिक गुड हो या कोई भी सर्विसेज हो, उसको किसके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है? प्राइस के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, दैट मीन एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्रेस विथ प्राइस ओनली। बीच में एक बात बोलता हूँ, कल मुझे किसी ने मैसेज किया, सर आप SMS हो या मतलब आप आसामी ही हो ना, हिंदी आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ठीक है। देखो, ये ज़रूरी तो नहीं है आसामीज होने से हिंदी प्रोनाउंसिएशन ख़राब होगा, ठीक है ना। मैं आसामी से हूँ, मेरा नाम आप लोगों को शायद पता ही होगा, कनक बरुआ। तो मैं आहूम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। उसका तो आपको हिस्ट्री पता ही होगा। बट हिंदी मतलब ये जो हमारा एक नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है,
हिंदी कभी नेशनल लैंग्वेज बना भी नहीं, इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये कभी मत सोचना कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, हिंदी वाज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना। मतलब हर जगह यूज़ करना होता है, आइदर हिंदी और इंग्लिश, वी हैव टू यूज़ बोथ द लैंग्वेज। सो इसलिए सीख के रखा हूँ, शायद अभी काम आ रहा है आप लोग को पढ़ाने में। मतलब ज़्यादातर बोलते हैं मैसेज में सर नॉन हिंदी स्टूडेंट्स भी हैं, नॉन असमीज स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए आप काइंडली हिंदी या इंग्लिश में समझा दीजिए, तो शायद आपको लिए जितना भी नॉन असमीज स्टूडेंट है सभी के लिए अभी तो मेरे थ्रू आपको कुछ समझ में शायद आ रहा होगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, ओके, मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। Okay, deferred payment are payment made later on and not at the point of time when the product or the service is delivered to the customer. It is taking commodity on credit. Account of all such payment expressed in terms of money. The transaction between the creditor and debtor similarly do not involve instantaneous payments. There are case of deferred payment. The debtor take a loan today but repay it later on. The account of transaction is maintained in the form of money. So money एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इसका अर्थ क्या है, बाद में देना, सिंपली समझे तो विल पे लेटर, मनी प्ले द रोल ऑफ दिस। देखो आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, आज EMI के थ्रू भी खरीद सकते हो, ठीक है ना, पार्ट पेमेंट के थ्रू भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो आप चीज़ खरीद सकते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस आप ले सकते हो, उसको आप धीरे धीरे पे कर सकते हो। इसका अर्थ क्या है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफर्ड पेमेंट, बाद में पे करना, ओके। लेकिन मनी के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन पेमेंट आप बाद में कर रहे हो। देखो फॉर एन एग्जांपल, द ट्रांजैक्शन बिटवीन क्रेडिटर, क्रेडिट मतलब जो देने वाला, डेब्टर जो ले रहा है, सिमिलरली डू नॉट इन्वॉल्व इंस्टेंटेनियस पेमेंट, मतलब तुरंत ही पेमेंट इन लोग नहीं करते हैं, इंस्टेंट पेमेंट नहीं होता है उनके बीच। देयर इज अ केस ऑफ डिफर्ड पेमेंट, बाद में पेमेंट करते हैं। द डेब्टर टेक द लोन टुडे बट रीपे इट लेटर ऑन। द अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ मनी। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या बोलूँ इसमें, इस पॉइंट में मुझे एक बात याद आ गया, कई सारे मेरे दोस्त हैं पैसा तो ले लेते हैं लेकिन वापस तो करना चाहिए ना, वापस होता ही नहीं है। उनके केस में डिफर्ड पेमेंट का रूल भी फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। जोक सपाट। अब फोर्थ पॉइंट जाते हैं, मनी फंक्शंस एज द स्टोर ऑफ वैल्यू। Commodity money cannot be stored up as it does not have durability. Commodity money cannot be stored up as it does not have durability. Saving cannot be done in the form of commodity money. Durability is one of the characteristics of money. Value of goods and service may be stored up in the form of money. As when the goods and services are needed, money can be easily converted into goods and services. So ये क्या, sorry, just a minute. अब काम नहीं कर रहे। सो क्या बोल रहा है, मनी फंक्शन एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी स्टोर ऑफ वैल्यू का रोल प्ले करता है। कमोडिटी में नहीं, जो पहले हम लोग कमोडिटी को यूज़ करते हैं मनी के रूप में यूज़ करते थे, ठीक है ना, तो उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं था। ये पॉइंट को मैंने पहले भी समझाया हूँ, स्टोर नहीं किया जा सकता था, सेविंग नहीं पॉसिबल था, कमोडिटी मनी में सेविंग पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है ना। तो ड्यूरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है मनी का, ठीक है ना। तो ये एक फंक्शंस भी है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मनी, मतलब कोई भी गुड्स को, कोई भी सर्विसेज को आप स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। आप मिट्टी खरीद लिया, ठीक है ना, पैसे से मिट्टी खरीद लिया, ठीक है ना, तो उसको आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को स्टोर किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ इन द फॉर्म ऑफ मनी। एज व्हेन गोल्ड खरीद लेना, एज व्हेन द गुड्स and services are needed, money can be easily converted into those goods and services, isn't it? जब वो गुड्स और सर्विस आपको चाहिए तब मनी के थ्रू इसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, ओके, अंडरस्टूड। अब देखो फॉर एन एग्जांपल, देखो, इफ एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स रैपिडली, मनी कैन बी रिप्लेस्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर और लैंड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। तो मनी को आप किसी के साथ कन्वर्ट कर सकते हो, किसी के साथ चेंज कर सकते हो, किसी के साथ इसको क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, अदल बदल कर सकते हो, ठीक है ना। मनी आपने कुछ देखा, आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत पैसा है, आपको ये भी पता है कि इकोनॉमी बहुत ख़राब है, शायद मनी का प्राइस गिरे, तो आप क्या कर सकते हो, मनी may be replaced by gold or silver or land as a store of value. जब वैल्यू ऑफ मनी शार्पली रैपिडली फॉल होगा, उससे पहले आप खरीद लो, उसके बाद उसको बिक्री कर देना जब सिचुएशन अच्छा हो। तो अर्थात क्या कि मनी के थ्रू ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरह भी मनी, मतलब एक मिट्टी को खरीदना
या कुछ सोना खरीदना, ये भी तो स्टोर ऑफ वैल्यू ही है, ठीक है ना. सो दैट इज हाउ मनी फंक्शन इज द स्टोर ऑफ वैल्यू. होप you have understood this fourth point. The first two functions of money are known as primary function of money and the last two are secondary function. हाँ, पहला दो इसको हम बोलेंगे primary function, जो सेकेंड दो हमने पढ़ा वो बोलेंगे हम secondary functions of money. ठीक है. Apart from this four function, there are also certain contingent functions of money. For example, money transferred from the rich may be utilized for the benefit of the poor, thereby reducing economic inequality. ठीक है ना. So देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस मनी कई सारे और भी काम करते हैं. एग्जाम्पल दिया गया है, मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिच में बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पोर, देयरबाय रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इसमें ये आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिच, देखो कोई एक रिच बच्चा है या कोई एक रिच लड़का है या कोई भी एक रिच फैमिली है, उनसे क्या डायरेक्टली हम लोग पैसा मांगते हैं यार? पैसा डायरेक्टली, उनका पैसा हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं? नहीं, थ्रू द गवर्नमेंट, थ्रू द टैक्सेस. क्योंकि उन वही लोग हैं, रिच लोग ही है या मिडिल क्लास ही है जो क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, और उसी टैक्स को यूज़ किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पोर. इससे क्या होता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं. रिड्यूस ज़्यादा तो रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है. ये भी एक फंक्शंस है मनी का. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट ऑल्सो. सो दैट इज़ द एंड ऑफ पार्ट 2. फंक्शन पढ़ा, मनी पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा. पहला वाला वीडियो भी आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, तभी और अच्छा से आपको ये पूरा बात समझ में आएगा. होप अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू. हैव ए गुड डे.